Hello student, welcome to your maths class. Again I am here to teach you the mathematics of class 8. Today we are going to learn a new chapter, that is linear equation in one variable. एक चर वाले रैखिक समीकरण. So students, I am sure you have remember that in your small classes you have learned numbers, operations like addition, subtraction, multiplication and division using numbers. For example, say 2 plus 3, okay, 3 plus 2 minus 3, then 6 multiply 7 minus 5, okay, then 3 divided by 6 minus 2, etc., etc. Okay, all these mathematical statements are called arithmetic expression. What is it called? Arithmetic expression. क्लियर? हिंदी में हम इसे कहते हैं अंकगणित, अंकगणितीय व्यंजक. Clear? This comes under arithmetic, or we can say number system. Similarly, if we will talk about shapes and its measure, all this comes under geometry. Clear? Okay? If we learn numbers, addition, subtraction, multiplication, division, okay, like operations, and alphabets, etc., etc. And if we learn about all this together, this comes under algebraic expression. Okay? So today we are going to learn a chapter, linear equation in one variable, and this chapter comes under algebra. Okay? So student, in this chapter, like arithmetic expression, we will learn some more terms like algebraic expression, okay, जिसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, समीकरण, an equation, linear equation, रैखिक समीकरण, and similarly and will find solution of an equation. किसी समीकरण का हल किसे कहते हैं, and finally we'll see how we'll find the solution of an equation. Okay student? So to understand all these terms, we'll take some example from our day-to-day life. Okay? So just imagine there is a two sister, Geeta and Sita. Okay? Geeta has 8 chocolate, clear, and she gave 3 to her sister Sita. Now the question is, गीता के पास कितने चॉकलेट्स बचते हैं? तो इसे फाइंड करना, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो इसे फाइंड करना बहुत ही ईजी है. 8, गीता के पास 8 चॉकलेट थे, बिकॉज शी गेव, उसने लूज़ किया, सो उसके लिए हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं. देन 8 minus 3, दैट इज गीता के पास रिमेनिंग चॉकलेट कितना है? 5. इफ़ आई से गीता हैज़ सम चॉकलेट, अगर मैं कहती हूँ कि गीता के पास कुछ चॉकलेट्स हैं एंड शी गेव 3 to her sister, उसने 3 चॉकलेट अपनी बहन सीता को दिया. ओके, सो अब गीता के पास कितने चॉकलेट बचते हैं? बिकॉज गीता हैज़ सम चॉकलेट, गीता के पास कुछ चॉकलेट्स है, सो विल राइट इट एज x, अननोन पार्ट x. ओके, then she gave 3 to her sister, so we'll write x, total number of chocolate is x, and she gave 3 to her sister क्योंकि उसने लूज किया, so -3. so now the गीता के पास में जो चॉकलेट बच जाते हैं, रिमेनिंग चॉकलेट है, दैट इज x -3. ओके, x
minus 3. This x minus 3 is called an expression. ओके यहाँ पे आप देखिए अल्फ़ाबेट्स भी है, नंबर्स भी है एंड ऑपरेशंस ये भी है. जैसे कि मैंने बताया जब हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड ऑपरेशन को लेकर सॉल्व करते हैं दैट कम्स अंडर अलजेब्रा. सो हियर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड ऑपरेशंस ये से मिलाकर एक टर्म बना, एक एक्सप्रेशन बना. दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड algebraic expression. Here x is called variable. Okay, this number is called constant. Variable चर इसे हम कहते हैं अचर and minus is called operation जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं. Clear? So what is an algebraic expression? An algebraic expression is a mathematical expression or statement that consists of constant numbers. Okay, it may be integers, it may be rational number or decimal. Okay, variables and mathematical operations. चरों और अचरों को संयोजित करके बीज व्यंजकों को हम बनाते हैं. इसे बनाने के लिए हम योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एन एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन क्या है? और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं एंड ऑपरेशन होते हैं. नाउ what is variable, what is constant? Okay, now we'll see what is variable and what is constant. Variables जिसकी वैल्यू चेंज होती है as per the condition, as per the statement, वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी. constant which is not change, 3 है तो 3 ही रहेगी, 3 will not change. Okay, so वेरिएबल की वैल्यू जो है as per the statement ये चेंज होता रहता है. Okay student, our next topic is an equation. An equation. To understand what is an equation, we'll take the same example, Geeta and Sita are two sisters. Okay, Geeta and Sita are two sisters. Now if I'll say Geeta के पास 5 चॉकलेट है. ओके, ऑल टुगेदर दे हैव 7 चॉकलेट्स. सब मिलाकर टोटल उनके पास 7 चॉकलेट्स हैं. ओके, गीता के पास 5 चॉकलेट्स हैं एंड द रिमेनिंग चॉकलेट इज विथ सीता. यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि सीता के पास कितने चॉकलेट्स हैं. ठीक है, सो जो अननोन पार्ट है उसे हम x से दिखाते हैं. क्लियर? सो स्टेटमेंट क्या था? Geeta has 5 chocolates. All together they have 7 chocolates and the remaining chocolate is with Sita. So इसके लिए how do you write a mathematical statement? आप कैसे इसका mathematical statement लिखेंगे? You'll write 5 plus x is equals to 7. See, 5 chocolate is with Geeta. The remaining chocolate is with Sita, which is unknown, and the total number of chocolate is 7. Clear? And we can write like this also, x plus 5 is equals to 7. Okay, so this x plus 5 is equals to 7. This statement, this mathematical statement is called an equation. Okay, यहाँ पे ये जो mathematical statement है इसमें x plus 5 is an expression, 7 is also an expression. इन दोनों expression को इक्वल टू सिंपल से इक्वलाइज किया गया है. इट मीन्स यहाँ पे दिस इक्वल टू सिंबल शोज कि x प्लस 5 एंड 7 बोथ आर इक्वल. एंड इक्वेशन में x प्लस जो इक्वल टू सिंबल है ये होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं समीका. दिस इज कॉल्ड इक्वल टू इक्वल
सिंबल, और हिंदी में हम इसे कहते हैं समता या फिर समीका। ओके, क्लियर स्टूडेंट? सो what is an equation? A statement of equality between two mathematical expression containing one or more variables. Okay, for example, if I'll write 2xy plus 5 equals to 7, this is also an equation because equal to symbol is here, यहाँ पे equal to का symbol है। ठीक उसी तरह 3/2x plus 5, or we can write 3/2z plus 5 is equals to 15. This is also an equation. So समीकरण क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं? समीकरण में समता या समीका का चिन्ह होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया चिन्ह सदैव इसमें उपस्थित होता है। समता का चिन्ह यह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाईं ओर, इस चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर का मान बराबर होता है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। ओके, एंड दिस इक्वल टू सिंबल शोज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप अपने डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो आपने बैलेंस देखा होगा, जैसे सब्जी खरीदते समय या कोई भी आप सामान खरीदते हैं, आलू प्याज कुछ भी खरीदते हैं, तो आपने बैलेंस को देखा होगा। दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ बैलेंस। यहाँ पे दिस साइड एंड दिस साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड भी कम या ज़्यादा हो जाए तो वो बैलेंस में नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया इक्वेशन यानी कि एक समीकरण जिसमें समता का चिन्ह होता है, इक्वल टू का साइन होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। सो ऑल दीज आर इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, दिस ऑल्सो एन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? देखिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स द हाईएस्ट पावर, लीनियर मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर। सो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो चर होती है, जो वेरिएबल होता है, उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे x plus y is equals to 7, we can say this is a linear equation, but यहाँ पे आपका जो टॉपिक है दैट इज इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आपके टॉपिक में है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो सेकेंड पार्ट 2xy is equal to 3, this is also not a linear equation in one variable. Now here the highest power is 2, so this is not a linear equation. Similarly, this is also not a linear equation because the power is 3 here. Now the remaining equation is x minus y is equal to 7. यहाँ पे x एक वेरिएबल है, x का पावर 1 है, so this equation is called linear equation in one variable, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। क्लियर? So what is linear equation? Linear equation means the highest power of the variable appearing in the expression is 1, that is 1, or we can say व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। Okay, so student, I hope you understood what is linear equation. Now we'll go to our next topic, solution. What is a solution of an equation? किसी भी समीकरण का हल क्या होता है हम देखेंगे। So student, now we'll see what is solution. What is the solution of an equation? समीकरण का हल किसे कहते हैं हम देखते हैं। We'll see, take some example. X minus 2 is equals to 3. Okay. Some solution of an equation means x के वो वैल्यू यहाँ पे x के जगह पे लिखना जिससे हम इसे कैलकुलेट करें या सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं ये समीकरण का हल। x का वह मान जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्लियर? सो
what is solution? I hope you understood. Value of variable for which left hand side is equals to right hand side are called solution of an equation. चर का वह मान जिससे समीकरण के बाईं ओर का मान दाईं ओर के मान का बराबर हो जाता है, इसे हम समीकरण का हल कहते हैं. Okay, now we'll see how we'll find the solution of an equation. There are three methods to find the solution of an equation, जो कि हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. First one is trial and error method, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रयत्न और भूल विधि. Second one is using properties of an equation. Equation का समीकरण के नियमों का प्रयोग करके सॉल्व करना. Then the third method is ट्रांसपोज यानी कि स्थानापन्न या पक्षांतरण करना. ओके, सो विल सी वन बाय वन व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड एंड हाउ विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. आई विल टेक वन एग्जांपल. आई विल टेक x minus 2 is equals to 3. Clear? Now I have to find the solution of this equation. It means I have to find the value of this equation x. We'll use trial and error method. Let x is equals to 1. So we'll take left hand side. This is called left hand side. X minus 2. So what is the value of x? हमने क्या लिया? 1. 1 minus 2, that is minus 1. Okay, which is not equals to right hand side. So we'll write left hand side is not equal to right hand side. Okay. Now we'll take x, let x is equal to 2. If I'll take x is equal to 2, x minus 2 left hand side को लेते हैं. So this is 2 minus 2, 0. And what is our left hand side? Right hand side? 3. So left hand side is not equals to राइट हैंड साइड. ये समीकरण x इज इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सिमिलरली इफ आई टेक लेट x इज इक्वल टू 3, हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज x minus 2. So we'll take 3 minus 2, this is 1, which is not equal to right hand side. So left hand side is not equals to right hand side. We'll take x is equals to 4. ठीक है. ट्रायल एंड एरर का मेथड का मतलब होता है आप बार बार उसे सॉल्व करना, वैल्यू पुट करना एंड चेक करना कि कौन सी वैल्यू x की कौन सी वैल्यू में आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होता है. सो लेफ्ट हैंड साइड x minus 2, this is 4 minus 2. 4 minus 2 is 2, which is, and our right hand side is 3. Left hand side is not equals to right hand side again. Okay, now the last we'll take let x is equal to 5. देखिए left hand side x minus 2, that is implies 5 minus 2 is equals to 3. See, our right hand side is 3, so we can say left hand side is equals to right hand side. Hence we can say the value of this x is 5, or we can say x is equal to 5 satisfy this equation. So the solution of this equation x minus 2 is equal to 3 is 5. Okay, here we can check it. हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या x minus 2 is equal to 3 का solution 5 है या नहीं. देखिए x minus 2 is equals to 3. हमारा solution क्या आया था? x is equal to 5 आया था. सो हम इसे चेक करते हैं कि क्या हमारा solution करेक्ट है. देखिए, put the value of x in place of x minus 2. Okay, this is 3, this is left hand side, so this is right hand side. Left hand side is equals to right hand side. आपका जो solution था वो equal आया. So we can say this कि x is equal to 5 is the solution of this equation.
Clear? Now we'll see the another method. The second method is using properties of an equation. समीकरण के नियमों को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना. So जो प्रॉपर्टीज है वो ये 4 प्रॉपर्टीज है. पहला है एडिंग सेम नंबर टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर टू बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग सेम नंबर टू बोथ साइड एंड डिवाइडिंग सेम नंबर टू बोथ साइड. आप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों को आपको करना है. मतलब दोनों पक्षों में एक ही तरह के ऑपरेशंस करना है, संक्रियाएं आपको करना है. दोनों पक्षों में अगर आप जोड़ रहे हैं तो दोनों पक्षों में सेम नंबर से जोड़ना है, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है और भाग देना है. ठीक है. सी x minus 2 is equals to 3. Clear? Solution find करना means value of x find करना. वैल्यू ऑफ x फाइंड करना इट मीन्स x के आसपास जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर्स है उसे हटा देना. क्लियर? इसके लिए x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2. हमने क्या किया? एडिंग. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? एडिंग 2 ऑन बोथ साइड. ठीक है. दोनों पक्षों में दो जोड़ना. क्लियर? सो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 3 + 2 5. सो दिस इज अवर सोल्यूशन. क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा. जो भी ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है, प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना. सो इस तरह यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व एन इक्वेशन. नाउ विल सी द थर्ड मेथड दैट इज ट्रांसपोज और स्थानापन्न करना या फिर पक्षांतरण करना. देखिए x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7. मैं ये क्वेश्चन ले लेती हूँ. क्लियर? ओके. नाउ सी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7. यहाँ पे इसे सॉल्व करना है. सो व्हाट आई विल डू? पक्षांतरण मतलब सेम टर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक साइड से दूसरे साइड ले जाना, लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे राइट हैंड साइड में ले जाना. जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो उसका साइन, जो भी नंबर को हम ट्रांसपोज करते हैं उसके साइन भी चेंज हमें करना होगा. ओके. सो ट्रांसपोजिंग इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7. क्लियर? ट्रांसपोजिंग और ट्रांसपोज 2 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में हम लिखें तो हम लिखेंगे दाएं पक्ष. हिंदी में हम लिखेंगे 2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. Clear, student? Now what we'll do? x is equals to 2 का पक्षांतरण कर रहे हैं. कहाँ ले जा रहे हैं? राइट हैंड साइड में. सो 7, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी टर्म को हम यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं उसका साइन भी चेंज हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 7 + 2. सो व्हाट इज अवर आंसर? 7 + 2 9. So the value of x is 9, or we can say the solution of this equation x minus 2 is equals to 7 is 9. Clear? We'll see some more example. देखिए, first one is 6 is equals to z plus 2. 6 is equals to z plus 2. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं z plus 2 equals to 6. Okay? Now solution. z is equals to 6 minus 2. z is equal to 6 minus 2. क्या किया हमने? ट्रांसपोज किया.
ट्रांसपोज 2 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में हम लिखेंगे दो को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। सो z इज इक्वल्स टू 6 minus 2 दैट इज 4. The value of z is 4. Similarly, see the next one is 6x is equals to 12. यहाँ पे ट्रांसपोज 6 टू राइट हैंड साइड। हिंदी में लिखेंगे 6 को दाएं पक्ष में स्थानापन्न, और वी कैन राइट पक्षांतरण ऑल्सो, स्थानापन्न करने पर। ओके, सी 6x that is 6x is equal to 12 by 6। क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, 6x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सो हम इसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, द वैल्यू ऑफ x इज 2। ओके, ये सेम क्वेश्चन को 6x इज इक्वल टू 12, ये सेम क्वेश्चन को मैं अगर सेकेंड मेथड से प्रॉपर्टी यूज़ करके अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी। देखिए 6x इज इक्वल टू 12 कैसे सॉल्व करूँगी प्रॉपर्टी यूज़ करके, दोनों पक्षों में या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। ओके, जो भी चर के साथ या वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, उसी को हम यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम दोनों साइड में 6 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कि अगर हम एक साइड में लिखते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों साइड इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए जो भी ऑपरेशंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है। क्लियर? सो 6 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 एंड x इज इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट? नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल। 2x by 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है एंड 3 डिवाइड में है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3 को यहाँ से रिमूव करना, 3 को यहाँ से हटा देना। सो हम इसे कैसे हटाएंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी में कहेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना। 2x by 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3। देखिए ये पार्ट को मैंने दोनों पक्षों में किया है, दोनों साइड में किया। देन 3 कैंसिल, दिस इज 2x इज इक्वल टू 12 3 जा 36। ओके, नाउ दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, 2 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। सो अगेन विल डू डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। हिंदी में हम कहेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देना। सो 2x by 2 इज इक्वल्स टू 36 by 2, 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. So what is your answer? X is equals to 18. So student, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।